हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लेक्चर नाउ। अभी तक हम लोगों ने जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा है दैट वी हैव डन विथ व्हाट आर्किटेक्चर हम पढ़ चुके हैं, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हैं. सो नाउ फ्रॉम टुडे वी विल बिगिन विद द पिन डायग्राम ऑफ 8085 एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस होल इन वन वीडियो ओनली. It's quite it may be quite lengthy. Okay, so let's start with the pin diagram of 8085. 8085 microprocessor is actually a 40 pin IC. ये सबको पता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में फीचर्स में बता भी चुकी हूँ 8085 में कि it actually consists of 40 pin ICs. Now these 40 pins are actually divided into different parts based on their functioning. For example, we have divided it into, just wait, okay, yes, crystal inputs. Then there are serial input and outputs. There are some pins which works on that. There are some interrupts. Then address and data bus buffer is there. That means the multiplex lines are there. Then address bus is there. Timing and control signals. Okay, so that means these 40 pin are divided into these few parts. आप अगर चाहो तो आप explain कर सकते हो on the basis of these parts, or you can explain it by taking it from pin 1 till pin 40. ठीक है, up to you. In your exams you can explain it in any ways. Okay, so let's start with the first pin, that is X1 and X2. Pin 1 and pin 2, they are the crystal input pins. ठीक है ना? That means they are connected with the crystal oscillators, and the work of crystal oscillator is to generate the clock signals. Clock frequency हम इसको बोलते हैं. ठीक है ना? यहाँ से आपकी ये clock pulses generate होती हैं. So actually what happens कि दो आपके यहाँ पे crystal oscillators connected हैं, X1 and X2. And if we say that a microprocessor is of 6 megahertz, ठीक है, इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 6 मेगाहर्ट्ज है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके फर्स्ट क्रिस्टल से भी 3 मेगाहर्ट्ज और नेक्स्ट क्रिस्टल से फिर 3 मेगाहर्ट्ज ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और इनको जब आप ऐड करते हो तो ये टोटल आपका 6 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट होता है जाकर के. सो रिमेंबर दिस थिंग. ओके, ये मेन चीज है इसमें. Now to generate a clock signal internally, 8085 requires two internal inputs X1 and X2. तो ये आपकी क्या हो गई, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए क्रिस्टल इनपुट पिंस हो गई. नेक्स्ट कम्स reset in and reset out. तो first of all remember one thing, you can check from here that reset out के ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ है, whereas reset in के ऊपर एक बार लगा हुआ है. So it is actually called as active low signals. इसका मतलब क्या होता है कि if you are working on reset out, this pin will be high if the value will be 1 here. Okay, but in reset in it works completely opposite to the this thing. That means कि if the value is 0, that means this pin is high. तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर बार है तो इसका मतलब है कि वो 0 पे एक्टिव हो रहा है, 1 पे वो क्या है, लो है, एक्टिव लो है. ठीक है ना? और रीसेट आउट के ऊपर आपका बार नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि ये 1 पर हाई हो जाएगा. सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज एन एक्टिव लो पिन. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रीसेट इन? इट इज यूज टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर. पूरे माइक्रो प्रोसेसर को जब आपको रीसेट करना होता है तब आप रीसेट इन को यूज कर सकते हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हेन द सिग्नल्स ऑन दिस पिन इज लो फॉर एटलीस्ट 3 क्लॉकिंग साइकिल्स. ठीक है, 3 क्लॉक साइकिल्स के बाद जब तक आपका ये सिग्नल पिन पे लो होता है, then only it forces the microprocessor to reset itself. That means for 3 clock pulses continuously एक आपका जो है क्या होना चाहिए, ये सिग्नल्स यहाँ पे एक्टिव लो होना चाहिए. Then only microprocessor come back to its reset position. Okay, so this is what reset is. Reset in. Okay, now next is reset out. This is an output signal. This is active high signal. Remember this thing, and it is used to reset the peripheral devices or other IC circuits. That means reset out का मतलब ये होता है if the signal comes here, यानी कि अगर ये 1 पर आता है और ये reset out जैसे ही एक्टिव होता है तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो भी पेरिफेरल यानी कि आउटपुट डिवाइसेस जो कनेक्टेड होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे. तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस को रीसेट करता है, ना कि माइक्रो प्रोसेसर को. इनका मतलब है माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ गेट्स रीसेट, एंड आउट का मतलब है कि व्हाटएवर द आउटपुट डिवाइसेस आर दे गेट रीसेट. Remember this thing. The output on the pin goes high whenever reset in is goes low in the signal. That means reset in अगर low है तो इसमें ये केस पे आपका high होना चाहिए. The output remains high on as long as reset in is kept low. Okay, the same thing. Next comes SID and SOD. This is pin 4 and pin 5. Okay.
SID is input pin, SOD is output pin. Okay, now here I would like to mention one thing. Keep a check on the pins whether they are the input pins or the output pins. If the pins are input, that means कि value आपकी microprocessor में आ रही है. Okay, and if the pin is output, if the pin is an output pin, you can check from the arrow here. अगर एरो आपका बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज एन आउटपुट पिन. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना. यू कैन चेक फ्रॉम हियर ऑल पिन्स, देयर आर फ्यू इनपुट पिन्स एंड फ्यू आउटपुट पिन्स. ये मैं मेंशन करना भूल गई थी एज X1 एंड X2, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो इसलिए ये इनपुट पिन्स हैं. ओके, नाउ कम्स टू सीरियल इनपुट डेटा. ठीक है, SID इज सीरियल इनपुट डाटा, और इसमें होता क्या है, इट टेक्स 1 बिट इनपुट फ्रॉम द सीरियल पोर्ट ऑफ 8085. यानी कि सीरियली जब आपको डेटा इनपुट करना होता है तो हम सीरियल इनपुट डेटा यूज करते हैं. एंड this particular pin is used normally when we use RIM instruction. RIM instruction means read interrupt mask. Okay, तो जब भी ये instruction use किया जाता है, then only we transfer the serial input pin data in that. ठीक है. And the other thing is that what is the work of serial input data? It stores the bit at the 8th position of the accumulator. मैंने आपको बताया था accumulator register is of 8 bit. ठीक है, हमने वो डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई रजिस्टर इस तरह से है तो यहाँ पे ये पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. तो ये वाली जो, यानी कि ये जो 8th बिट है, ठीक है, एक्यूमुलेटर की, इस 8 बिट में जाकर के आपका जो है क्या होता है, ये बिट यहाँ पे स्टोर हो जाता है, यहाँ पे आपको स्टोर करना होता है. सो दिस इज कॉल्ड सीरियल इनपुट डेटा, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है, देन कम्स सीरियल आउटपुट डेटा. This is definitely an output pin. So it takes the bit from accumulator to serial port of 8085. अब ये आउटपुट पे है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर में जो आपने स्टोर किया था, इट टेक्स दैट बैक. ठीक है, तो 8 बिट पोजीशन जो एक्यूमुलेटर से की जो 8 बिट की पोजीशन होती है, वहां पे जो डेटा डाला होता है उसको ये वापस फिर लेता है. एंड दिस इज नॉर्मली डन व्हेन देयर इज अ सिम इंस्ट्रक्शन गिवन. ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में सिम इंस्ट्रक्शन गिवन है तब ये सीरियल आउटपुट डेटा वर्क करता है. सिम इंस्ट्रक्शन इज सेट इंटरप्ट मास्क. इंस्ट्रक्शंस हम सारे एक साथ पढ़ेंगे एंड देयर आई विल टेल यू व्हाट इज रिम एंड व्हाट इज सिम, क्योंकि अभी मैंने इंटरप्ट भी आपको नहीं पढ़ाया. वी विल डील विद इंटरप्ट आल्सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द बिट, दैट्स इट. नाउ कम्स टू इंटरप्ट पिन. अभी हम आप इसी की बात कर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, before moving to different interrupt pin, I would like to tell you what interrupt is. So remember, in this video only I will cover up the interrupt. Interrupt is also a kind of program. ठीक है ना. इंटरप्ट्स का मतलब आप जानते हो, आप सपोज किसी से बात कर रहे हो और बीच में आके कोई आपकी बात को काट दे, या बीच में आकर के आपकी बात को एकदम से स्टॉप करने की कोशिश करें, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटरप्शन. ठीक है, तो अगर सेम वे माइक्रो प्रोसेसर में एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग चल रही है और फिर कोई दूसरी प्रोग्राम आकर के उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करे, तो उन्हें हम इंटरप्ट्स बोलते हैं. ठीक है, ये कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर को बीच बीच में इंटरप्ट करते रहते हैं. सो एक्चुअली इट मीन्स टू इंटरप्ट द नॉर्मल एग्जीक्यूशन. यू कैन चेक फ्रॉम ए नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. एक प्रोग्रामिंग को नॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहा है, बट अगर कोई दूसरा प्रोग्राम बीच में आता है तो उसे हम इंटरप्ट प्रोग्राम बोलते हैं. ठीक है, सो इंटरप्ट पिन्स आर देयर, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स. अलग अलग टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं और अलग अलग टाइप से हम उसको जो है डील करते हैं. ठीक है, सो वी विल डील विद ऑल दीज इंटरप्ट्स हियर ओनली. See, it starts executing new program indicated by the interrupt signal. The same thing, interrupt का मतलब ही है कि कोई नया प्रोग्राम जो कि बीच में एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, उसे हम इंटरप्ट्स कहते हैं. So when microprocessor receives the interrupt signal, it discontinues whatever it was executing. ये interrupts का मेन काम होता है. interrupt का मतलब ही होता है कि वो नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको इंटरप्ट कर रहा है, उसको डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है. ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग. सो इंटरप्ट सिग्नल्स आर जनरली बाय एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस. जो नॉर्मली इंटरप्ट्स आते हैं, ये जो पेरिफेरल या आउटपुट डिवाइसेस हम जिनको बोलते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, वही ज्यादातर जनरेट करते हैं. बट व्हाट हैपेंस वंस द इंटरप्ट कम्स, अगर आप अपने नॉर्मल प्रोग्राम को रोक करके अगर आप इंटरप्ट वाले प्रोग्राम को रन करा देते हो, देन आफ्टर दैट प्रोग्राम फिनिशेस यू कैन कंटिन्यू विथ योर नॉर्मल प्रोग्राम. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. नाउ first of all, start with, there are 5 interrupts in 8085, and remember one thing, it is written here there are 5 hardware interrupts. Okay, hardware interrupts जो होते हैं, because I'm telling you here,
Interrupts are further subdivided into two types. The first one is software interrupts and the other one is hardware interrupts. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर इंटरप्ट्स की बात कर रहे हैं. ये 5 होते हैं: ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. ट्रैप को हम RST 4.5 भी बोल सकते हैं. ये आप इस बात को ध्यान रखना है. ट्रैप कैन ऑल्सो बी written as RST 4.5, बट बहुत कम जगह पे आपको ये चीज दिखेगी. बस आपको इसको याद रखना है, ठीक है, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है. एंड देन INTR itself means interrupt only. ओके, तो ये 5 आपके इंटरप्ट्स हैं, आप इनको याद रखिएगा. और ये हम कैसे इनको जो है अलग अलग करते हैं. नाउ सी classification of interrupts. Besides your software and hardware interrupts, your interrupts are again classified into different ways on the basis of the functioning of the these interrupts. ठीक है ना, जो आपके 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स है उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पे हमने इसको कैसे कर रखा है. मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, एस ट्रिगर्ड एंड लेवल ट्रिगर्ड, priority based interrupts and non priority based interrupts. Okay, so first of all deal with what are maskable interrupts. See, the word maskable, आजकल आप लोग मास्क लगाते हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है. यू आर एक्चुअली हाइडिंग समथिंग, यू आर हाइडिंग योर नोज, यू आर हाइडिंग योर माउथ. तो उस वो जो हाइड हम कर रहे हैं उसी का मतलब होता है कि हम मास्क कर रहे हैं. दैट मीन्स किसी चीज को आप डिसेबल कर रहे हो. अगर हम इसको माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में देखें तो यू आर एक्चुअली डिसेबलिंग. जैसे आप मास्क यूज करते हो, देयर आर फ्यू पीपल हु फील सफोकेटेड बिकॉज दे आर अनएबल टू टेक द ब्रेथ. ठीक है, आप नोज से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, आप जब बोलते हो तो उसमें भी इंटरप्शंस आते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मास्केबल. ठीक है, आपने उसको मास्क कर दिया. मास्क करने का मतलब है नाउ दैट इंटरप्ट विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है, ये मेन चीज है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड maskable interrupts. So maskable interrupts are those interrupts which can be either enabled or disabled. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि when you want to enable it, when you want to disable it. So enabling and disabling is done by the software instructions. जो भी instructions program में given होंगे, according to that it will be enabled and disabled. List of maskable interrupts. कौन कौन से maskable interrupts होते हैं? RST 7.5, 6.5, 5.5 and IINTR. Out of 5, 4 interrupts are मास्केबल इंटरप्ट्स. तो ये ध्यान रखना, ये वो इंटरप्ट्स हैं जिनको कि आप डिसेबल कर सकते हो. दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ दीज इंटरप्ट कम्स यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. नेक्स्ट कम्स नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स. नाउ नॉन मास्केबल यानी कि जिसको आप मास्क नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स जिसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं ये इंटरप्ट अगर आता है तो माइक्रो प्रोसेसर को इसको लेना पड़ेगा इन द सेंस कि इसको एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा. ओके, सो द इंटरप्ट्स व्हिच आर ऑलवेज इन इनेबल्ड मोड, you cannot disable that, are called non-maskable interrupts. Okay, it can never be disabled. The only interrupt that is non-maskable is trap. Remember this thing, you cannot disable it. So priority basis also, this is of highest priority. That means you can't disable it, you have to take it and you have to execute it. Okay, then comes vectored interrupts. अभी तक हमने maskable non maskable कर लिया. Now comes to vectored interrupts. So vector interrupts actually are those interrupts which have फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन. दैट मीन्स जो एड्रेस, पूरी मेमोरी मैंने आपको बताई है, हर मेमोरी में कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं, है ना. तो अगर इन वेक्टर इंटरप्ट्स का मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, देन दे आर कॉल्ड वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. रिमेंबर दिस थिंग. सो द इंटरप्ट्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन for transfer and control from the normal execution, they are called vector interrupts. Each vector interrupt points to the particular location in a memory. Vectored इसका मतलब ही है कि उनकी location defined है. These are the list of vectored interrupts: RST 7.5, 6.5, 5.5 and trap. Now remember, again there are 4 vectored interrupts, but the one which is not a vectored interrupt, definitely इसका मतलब है कि वो उसकी कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो इंटरप्ट्स हैं वो चेंज हो रहा है. इससे पहले मास्केबल में ये नहीं थे. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ट्रैप अकेला था जो नॉन मास्केबल था.
ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी ये वेक्टर्ड है, तो इसका मतलब नॉन वेक्टर्ड में सिर्फ एक ही बचा, दैट इज INTR। आगे पढ़ते हैं हम उसको। ओके, वेक्टर्ड इंटरप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है, बट हाउ यू विल कम टू नो अबाउट दोज मेमोरी लोकेशंस, यानी इनकी एड्रेस आपको कैसे पता चलेंगे। सो रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। Suppose this is RST 7.5. So what you have to do, 7.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे एज रिटन हियर 0008, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी आप अगर सपोज इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर मैं इसको सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, व्हाट इट विल बी, 8 5 40, एक यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, सॉरी मैंने, है ना। 4 आपका जो है वो कैरी में चला गया, एंड 8 7 ओके सॉरी 56 होता है, एंड देन यू हैव टू ऐड हियर, सो इट विल कम 60, यस, ओके 56 प्लस 4, तो ये आपका 60 हो गया। नाउ 7.5 इंटू 8 इज 60, और इस 60 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद सबसे पहले आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, हेक्साडेसिमल में। सो यू विल गेट द रिजल्ट एज 003C, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डू इट कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में। अगर आप 0008 से कर रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज 0008 आपका डायरेक्टली वैल्यू को दे देगा। Absolute address is calculated by multiplying the RST value of 008, definitely. As I told you, that trap is actually, it can be written as RST 4.5 also. So 7.5, 6.5, 5.5, and again you can see trap का जो है वो 4.5 दिया हुआ है। Now जो इनके vectored address आए हैं वो ये हैं, that means 003C, and this H, ये H आपका एक्चुअली शो कर रहा है कि these numbers are in hexadecimal, ठीक है। तो 7.5 का जो वेक्टर एड्रेस है वो है 003C, RST 6.5 का जो वेक्टर एड्रेस है वो है 0034, RST 5.5 का 002C, एंड ट्रैप का है 0024, दे ऑल आर इन हेक्साडेसिमल। तो इसका मतलब इन सबके एक प्रॉपर वेक्टर्ड एड्रेस है। Now comes to non-vectored interrupts. Non-vectored interrupts are those which does not have any memory location. That means they don't have a fixed memory location for the transfer from the normal execution. ठीक है, तो एक ही है INTR, एक ही बचा हुआ था, so this is a non-vectored interrupt. इसका कोई भी fixed memory location नहीं है। Done. Now comes to edge triggered. Edge triggered क्या होते हैं? There are some interrupts which are triggered on leading or trailing edge that are called edge triggered interrupts. For example, if these are the clock pulses, ठीक है, हमें पता है क्लॉक पल्सेस हमारी इस तरह से जनरेट होती हैं, तो जब इस तरह से क्लॉक पल्सेस आपकी जनरेट हो रही हैं, तब किस टाइम पे, जैसे RST 7.5 इज एन एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट, इट इज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग दी लीडिंग, यानी कि पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज आपका ये हो गया, तो एज आपका ये आ गया, यानी कि इस पॉइंट पर आते ही आपका जो इंटरप्ट होता है वो ट्रिगर हो जाता है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स, ठीक है। Then comes level triggered interrupts. Now level triggered interrupts means the triggers are interrupted, or you can say these interrupts are actually triggered at high or low levels, which are called level triggers. अब ये वाला पॉइंट इसका हाई लेवल है, ठीक है, यहाँ से ये लो लेवल हो गया, तो एक पर्टिकुलर लेवल आपका यहाँ पर आ गया इस जगह पे। ये आपके RST 6.5, 5.5 एंड INTR, ये आपके जो होते हैं ये लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। There is only one interrupt which is trap, make sure which is both edge and level triggered. तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि edge triggered, level triggered, ये सारे के सारे आपके इस तरह से आते हैं। You can make a chart also, और उस चार्ट में आप इस तरह से अलग अलग डिफाइन कर सकते हो कि कौन से वाले में क्या चीज है। I will show you that chart in the next video. Okay. Then comes priority based interrupts. See, this priority based interrupts are somewhere related to those maskable and non-maskable interrupts only.
तो अगर आप मास्क कर रहे हो तो डेफिनेटली उनकी प्रायोरिटी कम होगी। हमें पता है कि एक ही इंटरप्ट था जो कि नॉन मास्केबल था, यानी कि जिसको आप रोक नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। एंड नॉर्मली प्रायोरिटी आपको कब सेट करनी पड़ती है, जब आपके पास दो चीजें हों, ठीक है, तभी आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा लेना है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि मे बी पॉसिबल टू इंटरप्ट्स कम साइमल्टेनियसली, या कोई रिक्वेस्ट आपके पास साइमल्टेनियसली आती है, तब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है, और जिसकी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है दैट विल बी सिलेक्टेड फर्स्ट, देन आप बाकी सबको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। सो सिमिलरली केवल एक ही है इंटरप्ट विच इज ट्रैप। ट्रैप जो है वो नॉन मास्केबल, आप उसको रोक नहीं सकते, तो डेफिनेटली उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन अदर्स, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी का लेवल है सारे इंटरप्ट्स का, फ्रॉम ट्रैप फर्स्ट प्रायोरिटी, देन RST 7.5 is on second priority, third, fourth and fifth, from 7.5 to 6.5, 5.5 and INTR. So this is the level of priority, ठीक है, highest priority, lowest priority you can check from here. So we have done with all types of interrupts. अब हम पढ़ते हैं कि ट्रैप इंटरप्ट कहाँ पर हैं। सी ट्रैप इंटरप्ट आपका इनपुट पिन है, पिन नंबर 6 है। अब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि ट्रैप आपका नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल है तो डेफिनेटली वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ही होगा, और नॉन मास्केबल है मतलब कि आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि इट वर्क्स ऑन बोथ एज एंड लेवल ट्रिगर, ठीक है। Signal must be low to high. It means trap signal must go from low to high. ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है। And must remain high for a certain period of time. अगर आप trap signal provide हो रहा है तो at least for 1 clock frequency it will remain low to high. ठीक है। Then next comes RST 7.5. This is again pin 7 which is an input pin. अब हम ये भी पढ़ चुके हैं सारी चीजें। It is a maskable interrupt, लेकिन second highest priority पर है। ये S triggered होता है। The internal flip flops are triggered by the rising edge, क्योंकि S triggered है तो नेचुरल सी बात है कि पॉजिटिव एज पर ही ये वर्क करता है, ठीक है। एंड दिस रिमेन्स हाई अंटिल इट इज क्लियर्ड बाय रीसेट इन, यानी कि ये पिन आपकी परमानेंटली हाई रहेगी अगर RST 7.5 इंटरप्ट आता है, और कब तक रहेगी, जब तक कि पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर रीसेट नहीं हो जाता। RST 6.5 अगेन इट इज अ मास्केबल, इट हैज थर्ड प्रायोरिटी, इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड, पिन हैज टू बी हेल्ड हाई फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये नॉर्मली यू कैन से दैट कुछ टाइम के लिए तो सभी पिन्स जो है वो हाई होनी चाहिए। 6.5 can be enabled by EI instruction. Instructions में हम पढ़ लेंगे what is EI instructions, and it can be disabled by DI instruction. मैं इसका full form बता देती हूँ। EI instruction is enable interrupt and DI instruction is disable interrupt. Okay, तो जब इनेबल इंटरप्ट आप करोगे तो इसका मतलब है क्योंकि ये मास्केबल था, आपने इसको क्या करा, प्रायोरिटी भी इसकी थर्ड प्रायोरिटी पे आपने रखा, आपने इसको मास्क कर दिया कि जब हम इसको इनेबल करेंगे तभी ये इनेबल होगा, जब हम चाहेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं दे आर EI एंड DI। नाउ नेक्स्ट इज 5.5, अगेन इट इज अ मास्केबल, क्योंकि एक ही नॉन मास्केबल है तो बाकी सब मास्केबल होंगे ही। प्रायोरिटी आप लिख सकते हो फोर्थ, लेवल ट्रिगर्ड है, and pin has to be held for a specific period of time. ये सभी के लिए ही है, you know that the interrupt is very similar to 6.5. 6.5 का मतलब वही चीज आ गई है कि EI और DI पे ये वर्क करेगा। Then comes INTR, ये कुछ डिफरेंट है बट लेट्स सी, मास्केबल इंटरप्ट होगा ही, प्रायोरिटी लोएस्ट है इसकी, दैट मीन्स कि इसको तो सबसे लास्ट में ही चेक किया जाएगा। लेवल ट्रिगर्ड है ये, इट इज अ जनरल पर्पस इंटरप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आ गई इन INTR के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है आपका, बहुत ही नॉर्मल पर्पसेस के लिए INTR यूज करते हैं। बाय जनरल पर्पस वी मीन दैट it can be used to vector microprocessor any specific subroutines having any address. So general purpose का मतलब क्या हो गया कि आप इसको वेक्टर माइक्रोप्रोसेसर के लिए आप जो यूज कर रहे हो उसको किसी भी सब रूटीन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं हैविंग एनी एड्रेस, क्योंकि इसका खुद का वैसे भी कोई एड्रेस नहीं है। ओके, the most important pin is INTA. Now INTA is again you can see that it is pin 11 output pin, which is again what, there is a bar,
तो INTA का मतलब ये हुआ कि जब ये 0 होगा तभी इस पे क्या होगा, ये हाई होगा। तो ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इस INTA का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। इट इज एन आउटगोइंग सिग्नल, इट इज एक्टिव लो सिग्नल, एक्टिव लो क्योंकि बार लगा हुआ है, ठीक है ना। लो आउटपुट है इस पिन में, दैट इंडिकेट्स दैट द माइक्रो प्रोसेसर हैज एक्नॉलेज द INTR रिक्वेस्ट, यानी कि जब आपका ये इंटरप्ट आया है तो वो इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर को मिल गया कि नहीं मिल गया, इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर थ्रू INTA पिन। ओके, सो ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि यस वी हैव रिसीव्ड द इंटरप्ट, दैट इज द मेन थिंग। नाउ कम्स टू द एड्रेस बस एंड डेटा बस। ठीक है, सबसे पहले एड्रेस बस, हमें पता है एड्रेस बस जो 16 पिन्स होती हैं वो हम यूज करते हैं टू सेंड द एड्रेस टू मेमोरी। ठीक है, तो ये आप कोई भी एड्रेस कहीं से भी आप सिलेक्ट करो, जो आपका प्रोग्राम चल रहा होता है उसी प्रोग्राम से हम एड्रेस लेते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से स्टार्ट करता है, फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर। एंड प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्राम है उसका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में सेव होता है, वो आपका मूव करता है टू द माइक्रो प्रोसेसर थ्रू एड्रेस बस। ठीक है, 16 बिट की पिन होती है। देन कम्स डेटा बस। डेटा बस क्या होता है, आपका ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। और जब ये दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी कि जब हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी वन साइड, मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, इसीलिए डेटा पिन्स बाय डायरेक्शनल होती हैं। एड्रेस सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जाता है, वहां से हम कुछ लाते नहीं है क्योंकि वो तो एड्रेसेस हैं उसके, ठीक है ना, वो कोई डाटा नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। सो इट इज ऑफ 8 बिट। ठीक है, नेक्स्ट AD0 to AD7 which are actually multiplexed buffer lines of address and data both, और ये आपकी बाय डायरेक्शनल होंगी क्योंकि ये डेटा भी होता है इसमें। These pins serves a dual purpose, that means कि इसमें आप डेटा भी सेंड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एड्रेस के जो लोअर बिट्स होते हैं वो भी हम सेंड करते हैं। It remains clock cycles, these pins act as सॉरी आई मीन टू से, याद रखना कि जब हम टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे उसमें जो फर्स्ट क्लॉक पल्स होती है उस फर्स्ट क्लॉक पल्स में एड्रेस मूव करता है इन पिन्स के साथ। ठीक है ना, और ये वाली पिन्स हैं ये हायर बिट्स लेके चलती हैं, ये वाली पिन्स जो होती हैं ये लोअर बिट्स लेके चलती हैं एड्रेस की। ठीक है, तो लोअर हाफ ऑफ द एड्रेस, हायर वाला तो इससे मूव कर ही रहा है, सबको पता है। लेकिन नेक्स्ट पल्स, नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए, यानी कि आपकी जो आगे की पल्सेस होती हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, बाकी ये जितने भी आपके मूव करेगा सबके लिए सिर्फ डेटा की तरह ही यूज करेगा, यानी कि एज डेटा बस आपका ये यूज होगा। सो सेपरेशन ऑफ लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा इज डन बाय एड्रेस लैच। एक पिन होती है विच इज कॉल्ड ALE, अभी हम पढ़ेंगे, उससे हमें ये क्लियर होता है कि when we are using these pins as address bus and when we are using these pins as data bus. Now let's check how. A8 to A15 ये आपकी 8 हायर बिट्स जो होती हैं, ये वाला आपका हो गया। ठीक है, वो एड्रेस के 8 हायर बिट्स को लेकर मूव करता है ये बस, तो इसलिए ये आपकी यूनिडायरेक्शनल होती हैं। पिन 21 से लेके पिन 28 तक आपकी हायर बिट्स होती हैं एड्रेस की। Then this is address is sent from microprocessor to memory, and remember again I am telling you memory से microprocessor नहीं आता, इसीलिए address buses unidirectional होती हैं। Okay, these 8 pins are switched to high impedance state during hold and reset mode. अब जब ये दो पिन्स आपकी वर्क करती हैं, होल्ड पिन्स एंड रीसेट पिन्स, तो उस टाइम पर ये एड्रेस बसेस यानी ये जो 8 पिन्स होती हैं ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में पहुंच जाती हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो सी ट्राई स्टेट पे पहुंच जाती हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू, लेट्स कम टू ALE। नाउ व्हाट इज ALE? एड्रेस लैच इनेबल, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। दिस इज 30th पिन, ठीक है, एंड दिस इज एन आउटपुट पिन। एड्रेस लैच इनेबल क्या होता है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लेक्स बसेस हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट साइकिल के लिए ये एड्रेस लेके मूव करता है और बाकी की साइकिल्स के लिए ये डेटा को लेकर मूव करता है। तो जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल होती है उसमें ये पिन हाई रहती है, और जब ये हाई है तो एक्चुअली ये एक इंडिकेशन दे रही है कि इस टाइम पर एड्रेस बिट्स मूव कर रही हैं, यानी कि लोअर बिट्स ऑफ एड्रेस
आर मूविंग फ्रॉम दीज बसेस, ठीक है। और जैसे ही ये पिन लो हो जाती है, इट शोज दैट नाउ द डाटा बिट्स आर मूविंग फ्रॉम दिस डाटा बस, ठीक है, कि अब हम इसको एज डेटा बस यूज कर रहे हैं, और जब 1 था तो हम उसको एज एड्रेस बस यूज कर रहे थे। तो एड्रेस लैच इनेबल ही एक पिन ऐसी है जिससे ये पता चलता है कि ये मल्टीप्लेक्स लाइंस कब किस चीज के लिए यूज हो रही है। देन कम्स S0 एंड S1, ठीक है, ये आपकी स्टेटस पिन्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेटस पिन्स, ठीक है। ये रही आपकी 33 एंड 29 नंबर पे, एंड दे बोथ आर आउटपुट पिन्स, ठीक है। नाउ दे टेल द करंट ऑपरेशन विच इज इन प्रोग्रेस। इन दो पिन्स पे वैल्यू हाई है या लो है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पूरा टेबल मैंने ये दे दिया है, नाउ यू कैन चेक फ्रॉम हियर कि अगर 0 0 है तो हॉल्ट है, यानी कि नो ऑपरेशन इज देयर। अगर 0 1 है दैट मीन्स S0 पे 0, S1 पे 1, तो यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। राइट ऑपरेशन का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में डेटा जा करके या तो सेव हो रहा है, वहां पे राइट हो रहा है, ठीक है। मेमोरी में डेटा को हम एक तरह से सेव कर रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी डेटा आपका मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन 1 0 पे ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ओके। रीड का मतलब है कि आपने डेटा को, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से डेटा को फेच करके लाने के लिए गया है, तो वो मेमोरी में रीड कर रहा है, यानी कि विच डेटा दे हैव टू फेच, ठीक है। एंड 1 1 पे मतलब है कि ऑप कोड फेच, यहाँ पे ऑप कोड आपका फेच हो रहा है, दोनों पे अगर 1 है तो ऑप कोड फेच, ये आप फिर से टाइमिंग डायग्राम में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। Now the pin tells whether IO, okay, we have pin number 34 which is IO oblique M bar. IO आपका हाई होगा जब 1 होगा, सिमिलरली M बार आपका हाई होगा जब 0 होगा। That means what? IO is actually input output and M is memory. माइक्रो प्रोसेसर या तो मेमोरी के साथ वर्क करता है या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। नाउ कब मेमोरी के साथ वर्क कर रहा है और कब इनपुट आउटपुट के साथ, वो आपका पिन नंबर 34 बताता है। अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट इज ऑपरेटिंग, ऑपरेशन इज परफॉर्म, और अगर 0 है तो मेमोरी ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, अदरवाइज विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। लेट्स सी, जब आपके IO और M बार इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं विद द स्टेटस पिन्स, तो आपका कुछ अलग ही एक निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि S0 और S1 अगर ये इस पर 0 और 1 है, दैट मीन्स राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सिमिलरली अगर IO और M बार 0 है तो इसका मतलब है मेमोरी, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। उसी तरह से जब आप सारी पिन्स को यहाँ पे ऐड कर दोगे, मतलब कि IO और M बार के साथ अगर आप इन स्टेटस पिन्स का भी स्टेटस ले लोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है मेमोरी में या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू हियर कि अगर यही वैल्यू यहाँ पर 1 होती, सो इंस्टेड ऑफ मेमोरी वी हैव रिटन इट हियर एज कि यहाँ पे आपका IO राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये चीज, बस ये डिफरेंस है, इसके लिए मैं आपको एक पूरा टेबल दिखा देती हूँ। This is table showing IO oblique M bar S0, S1 and corresponding operations. अब आप यहाँ पे देख लो, opcode fetch आपको पता है कि जब दोनों पे 1 1 होता है, लेकिन ये opcode fetch आपका किसके साथ चल रहा है, अभी 0 है तो मेमोरी, ये मेमोरी रीड, ये मेमोरी राइट। सिमिलरली IO रीड हाई है क्योंकि 1 0 है, यहाँ पे देखो 1 0 तो रीड चलेगा, अगर 0 1 है तो राइट चलेगा, ठीक है, ये 1 है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है अगर ये दोनों आपके हाई हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट पिन में अभी क्या बताया था, आई विल शो यू। फ्रॉम हियर 1 1 का मतलब होता है ऑपकोड फेच, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे दिखा दी आपको कि ऑपकोड फेच का मतलब क्या हुआ, 1 1 है और यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ है, तो यहाँ पे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, INT ये वर्क कर रहा है। एंड हॉल्ट, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है और यहाँ पे भी 0 और 0 हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया
कि प्रोग्राम आपका हॉल्ट कंडीशन पर आ गया है. नाउ दिस इज पिन नंबर 32 विच इज कॉल्ड रीड. ठीक है, RD स्टैंड्स फॉर रीड. और ये आपका फिर से एक्टिव लो है, यानी कि ये आपका हाई कब होता है, जब यहाँ पे 0 होता है. ये जब माइक्रो प्रोसेसर में रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, तब ये रीड वाला पिन 32 जो होता है ये हाई हो जाता है, यानी कि 0 पे आ जाता है. एंड इट कंट्रोल्स द सिग्नल यूज्ड फॉर रीड ऑपरेशन ईदर फ्रॉम मेमोरी और फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. कहीं से भी आप रीड कर सकते हो. A low signal indicates that data on the data bus must be placed either from selected memory location or from input device. इसका मतलब मैंने आपको भी बताया था कि जब माइक्रो प्रोसेसर से आप मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जा रहे हो, उसे कहते हैं रीड. रीड करने का मतलब कि आपने वहां से लिया और वहां से डेटा को पिक करके आपने उसको क्या करा, डेटा बस में डाल दिया. उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीड ऑपरेशन. ठीक है, राइट ऑपरेशन सेम था, आप मेमोरी से लेके जा रहे हो और वहां पे माइक्रो प्रोसेसर से लेके जा रहे हो, मेमोरी में आप उसको जाके सेव कर रहे हो. That is called write. Again, this is pin number 31. This is an output pin. ये वर्क करेगा 0 पे, क्योंकि ये एक एक्टिव लो सिग्नल है. स्टैंड्स फॉर राइट मैंने आपको बता दिया है. कंट्रोल सिग्नल राइट ऑपरेशन ईदर इनटू मेमोरी और आउटपुट डिवाइस, या तो मेमोरी से हो रहा होगा या आउटपुट डिवाइस से हो रहा होगा. Now, low signal indicates that data on the data bus must be written into selected memory location or into output device. Written into मतलब एक तरह से आप सेव कर रहे हो, वहां पे राइट कर रहे हो. ठीक है ना, तो आप डेटा बस से आपने डेटा उठाया और मेमोरी में जा करके उसको राइट अप कर दिया. ठीक है, उसको हम कहते हैं, यानी कि सेव कर दिया आपने, वहां लिख दिया कि ये वैल्यू इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपने जाके सेव कर दिया. दैट इज कॉल्ड राइट. नाउ कम्स रेडी पिन. Ready pin is pin number 35 and it is an input pin. You can check from here. ये पिन जो होती है ये हम नॉर्मली वर्क करते हैं जब हम किसी पेरिफेरल डिवाइस के साथ वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि जो साथ में एक एडेड आपका डिवाइस कनेक्टेड होता है, उस टाइम पर हमको इस पिन की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, द वे माइक्रो प्रोसेसर वर्क, मतलब कि जो स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इवन द पेरिफेरल डिवाइस कैन वर्क ऑन दैट सेम स्पीड. हो सकता है कि पेरिफेरल डिवाइस की स्पीड थोड़ी कम हो या ज्यादा हो, मोस्ट प्रोबेबली कम हो सकती है. ठीक है, तो उनका आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है. इन दैट केस व्हाट हैपेंस, समटाइम्स माइक्रो प्रोसेसर जो कि बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, ही हैज मेड एवरीथिंग रेडी फॉर द पेरिफेरल डिवाइस, बट पेरिफेरल डिवाइस थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो वो स्लोली डेटा को मूव करा रहा है. इसलिए हम ये रेडी सिग्नल यूज करते हैं. दिस सिंक्रोनाइजेस अ स्लोअर पेरिफेरल डिवाइसेस विथ फास्ट माइक्रो प्रोसेसर. कैसे? इसमें माइक्रो प्रोसेसर, अगर ये सिग्नल आपका हाई हो जाता है, इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर इज रेडी, ठीक है, टू वर्क विद द पेरिफेरल डिवाइस. ये बस आपको ध्यान रखना है. सो द माइक्रो प्रोसेसर रिमेन्स इन वेट स्टेट अंटिल द इनपुट एज दिस पिन गोज हाई. ठीक है, तो ये वेट स्टेट में रहता है, मतलब कि अब चूंकि वो रेडी है, यानी कि वो वेट कर रहा है, तो एक सिग्नल सेंड कर दिया पेरिफेरल डिवाइसेस को कि वी आर रेडी टू वर्क विथ यू. ठीक है, इसका मतलब है कि अब माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में आ गया है. अ लो वैल्यू कॉजेस माइक्रो प्रोसेसर टू एंटर इनटू वेट स्टेट. नाउ कम्स होल्ड पिन. होल्ड पिन इज नॉर्मली यूज्ड, यहाँ पे दो पिन्स हैं, होल्ड एंड HLDA. अभी HLDA में हम आगे पढ़ेंगे. ये दोनों पिन्स हम यूज करते हैं फॉर DMA ट्रांसफर. ठीक है ना, यानी कि जब हम DMA जो पेरिफेरल डिवाइस के साथ वर्क कर रहे होते हैं, DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ठीक है, तो जब हम इसमें वर्क कर रहे होते हैं, तब हमको होल्ड और HLDA पिन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड होल्ड पिन इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट द माइक्रो प्रोसेसर फॉर DMA ट्रांसफर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसफर. डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करना, दैट इज DMA. ठीक है, तो इस चीज को आप बस ध्यान रखना. द रिक्वेस्ट इज सेंड बाय DMA कंट्रोलर. DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, ये सिग्नल, ये रिक्वेस्ट एक तरह से सेंड करता है. ठीक है, तो कौन कौन से DMA कंट्रोलर्स होते हैं? सपोज व्हेन वी यूज 8257 और 8237, जब हम ये यूज कर रहे होते हैं, तो दे हैव एक्चुअली 2 DMA कंट्रोलर्स. A high signal on this pin is request to microprocessor to relinquish the hold on buses. ये पिन, ये रिक्वेस्ट तब जाती है जब DMA ये चाह रहा होता है कि जो बसेस है माइक्रो प्रोसेसर की, उन पे वो डायरेक्टली होल्ड कर सके और अपना डाटा सेंड कर सके.
ये चीज होती है होल्ड पिन. HLDA is actually hold acknowledgement. Again the same thing. माइक्रो प्रोसेसर को जब होल्ड सिग्नल मिल गया तो माइक्रो प्रोसेसर एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड कर देता है कि हाँ वी हैव रिसीव्ड योर होल्ड सिग्नल. तो जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है माइक्रो प्रोसेसर की, इट रिलीव्स द होल्ड, यानी कि वो अपना होल्ड पूरा का पूरा डीएमए को सेंड कर देता है. वो अपना होल्ड छोड़ देता है ताकि डीएमए जो है उस पर होल्ड कर सके. ठीक है, ये मेन चीज होती है. सो माइक्रो प्रोसेसर यूजेस दिस पिन टू एक्नॉलेज द रेसिपिएंट ऑफ द होल्ड सिग्नल. When HLDA signal goes high, address bus, data bus, सारी pins they come into tri-state condition. This means they are cut off from the external environment. Tri-state condition का मतलब उनका जो है पूरा कट ऑफ हो जाता है, बाहर की चीजों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है. तो या तो वो हाई होती हैं या लो होती हैं, या ये तीसरी कंडीशन होती है जहां पे वो ट्राई स्टेट कंडीशन पे आ जाती हैं. सी Okay, there are few more points. The control of these buses goes to DMA controller. जब आप ट्राई स्टेट कंडीशन पे आ गए, यानी कि सारा कट ऑफ हो गया आपका, सारी पिन सारी बसेस का, तब डीएमए कंट्रोलर को सारा का सारा कंट्रोल चला जाता है. ठीक है, तो कंट्रोल रिमेन्स विद डीएमए कंट्रोलर अंटिल होल्ड इज हेल्ड हाई. जब तक होल्ड पिन आपकी हाई रहेगी तब तक डीएमए कंट्रोलर का माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस, एड्रेस बस, सबके ऊपर कंट्रोल रहेगा. वो खुद यूज करेगा, ना कि माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. When hold goes low, HLDA goes low and the microprocessor takes control of the buses. जब होल्ड पर लो सिग्नल आ जाता है, इसका मतलब है कि नाउ डीएमए कंट्रोलर हैज वर्कड और वो सारे के सारे कंट्रोल्स जो होता है वो वापस माइक्रो प्रोसेसर को दे देता है. एंड माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्स इट अगेन. ओके, फ्यू पिन्स लेफ्ट. पिन 20 एंड पिन 40, ये आपकी पिन्स जो बची हुई हैं. ये इनपुट पिन है, ये भी आपकी इनपुट पिन है. दिस इज VSS, दैट मीन्स दिस इज द ग्राउंड सिग्नल. दिस इज VCC विच इज सप्लाई. सप्लाई हम कितनी देते हैं? 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, जो कि हमने फीचर्स में पढ़ लिया है ऑलरेडी. एंड दिस इज अ ग्राउंड सिग्नल, एक ग्राउंड इसमें कनेक्टेड होता ही है. सो दिस इज ऑल कंप्लीट्स योर पिन डायग्राम. Now we will deal with other points, other topics in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.